السلام علیکم ساتھیوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ساتھیوں، ایس سی ٹیٹ، ایم پی ٹیٹ، ریٹ، آل ٹیٹ کی پیڈاگوجی کی کلاس کو شروع کریں اور سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آئیے آپ لوگ شرکت کریں۔ چلیے بلا تاخیر پہلے سوال پر آتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، بچوں کے لکھنے کی مہارت کا اندازہ قدر کرنے کے لیے بہتر طریقہ ہے، یعنی کون سا طریقہ ہے؟ پوچھا جا رہا ہے کہ بچوں کے رائٹنگ اسکل کا مولانکن کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ، سب سے اچھی ودھی کون سی ہے؟ پہلا آپشن ہے اپنے تجربات لکھنا، دوسرا آپشن ہے املا لکھنا، اور تیسرا آپشن ہے سبق سے متعلق سوال و جواب لکھنا، چوتھا آپشن ہے نقل لکھنا۔ تو ساتھیوں، اس کا صحیح جواب آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم بتاتے ہیں، اس کا پہلا جواب ہے پہلا آپشن اس کا صحیح جواب ہے، یعنی بچوں کے جو لکھنے کی مہارت ہے اس کا جب آپ اندازہ قدر کریں گے، مولانکن کریں گے، تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ بچوں سے آپ کہیں کہ وہ اپنے تجربات کو، اپنے انوبھو کو پرستت کریں، پیش کریں، تو وہ اس سے جو ہے ان کے لکھنے کی جو ہے اسکل کا پتہ آپ کو چل جائے گا، آپ مولانکن کر لیں گے۔ اگلا سوال ہے، ایک بچہ جو خالی جگہ ہے میں مبتلا ہے، سا اور واز میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ بچہ کس بیماری میں مبتلا ہے جو سا اور واز میں فرق نہیں کر پاتا ہے؟ پہلا آپشن ہے ڈسلیکسیا، دوسرا آپشن ہے ڈسکیلکولیا، تیسرا آپشن ہے لفظ جمبلنگ یعنی ورڈ جمبلنگ، اور چوتھا آپشن ہے ڈسفارمیا۔ تو ساتھیوں، اس کا صحیح جواب ہوگا ڈسلیکسیا، یعنی آپشن نمبر 1۔ پہلا آپشن اس کا صحیح ہے، کیونکہ جو بچہ پڑھنے میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اس کو پٹھن سے سمبندھت دقت اور کٹھنائی آ رہی ہے، وہ ڈسلیکسیا سے گرست ہے، ڈسلیکسیا میں مبتلا ہے، جو سا اور واز میں فرق نہیں کر پاتا ہے یا را اور ڑا میں فرق نہیں کر پاتا ہے، تو وہ آپ کا بچہ جو ہے ڈسلیکسیا میں مبتلا ہے۔ اگلا سوال ہے، گھر کا کام یعنی ہوم ورک سے متعلق کون سا بیان درست ہے؟ پوچھا جا رہا ہے، گرہ کار کے سمبندھ میں کون سا کتھن ستیہ ہے؟ پہلا آپشن ہے گھر کا کام والدین کو مصروف رکھنے کا اچھا ذریعہ ہے، یعنی جو گھر کا کام ہے یہ گرہ کار ماتا پتا کو بزی رکھنے کا اچھا مادھیم ہے۔ دوسرا آپشن ہے بچوں کی صلاحیت اور سطح کے مطابق گھر کا کام دینا چاہیے۔ تیسرا آپشن ہے گھر کا کام درجے میں دیے گئے کام کی مشق ہے۔ چوتھا آپشن ہے گھر کا کام دینا بہت ہی ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ تو ساتھیوں، اس کا صحیح جو جواب ہوگا وہ ہوگا آپ کا آپشن نمبر 2، یعنی جب بھی بچوں کو گرہ کار دیا جائے، ہوم ورک دیا جائے، تو بچوں کی صلاحیت، ان کی یوگتا، ان کی مانسک شکتی، ان کی جو ہے آیو اور ان کی جو ہے لیبل کے انوسار ہی دیا جانا چاہیے، تاکہ وہ کام کو اچھی طرح سے پورا کر سکیں۔ چلیے اگلے سوال پر آتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، نرسری کلاس میں کون سا موضوع سب سے بہتر ہے؟ یعنی پری پرائمری میں کون سا ٹاپک، کون سا جو ہے موضوع سب سے اچھا اور سب سے بہتر ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ پہلا آپشن ہے میرا اسکول، دوسرا آپشن ہے میرا گھر، تیسرا آپشن ہے میرا پیارا دوست، چوتھا آپشن ہے میرا پڑوس۔ تو ساتھیوں، اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہوگا آپشن نمبر 2۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بچہ پری پرائمری میں ہے، ابھی شروع میں، ابتدا میں، آغاز میں، پرارمبھ میں بچہ اسکول میں آیا ہے، تو اس کو تو اپنے گھر سے سمبندھت چیزوں ہی کے بارے میں جانکاری ہوگی، تو اس کے لیے سب سے اچھا موضوع، سب سے اچھا ٹاپک ہوگا میرا گھر، کیونکہ ابھی اسکول میں آیا ہے تو نیا ہے، اسکول ہو نہیں سکتا، ابھی اس کے دوست بھی زیادہ نہیں ہوں گے، پاس پڑوس بھی اس کا کوئی خاص اثر ابھی اس کا جو ہے تعلق نہیں بنا ہوگا، اس لیے سب سے اچھا موضوع میرا گھر ہوگا۔ آئیے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم اور مہتوپورن چیزیں ہم نے لے رکھی ہیں، جو
पठन विकार या मानसिक विकार या राइटिंग विकार से संबंधित है, उसको देखते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। डिसलेक्सिया जो है, इसमें सीखने की दुश्वारी होती है, इसमें तलबा को पढ़ने में मुश्किलात आती है, क्योंकि वो बहुत से हरूफ में फ़र्क नहीं कर पाता है। यानी जो बच्चा जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित है, उससे पीड़ित है, तो वो बहुत से अक्षरों में फ़र्क नहीं कर पाता। जैसे रा और रा में फ़र्क नहीं कर पाता है, या सा और वाज लिखा हुआ उसमें फ़र्क नहीं कर पाता है, या न्यूक्लियर लिखा है तो वो अनक्लियर पढ़ता है, या अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ता है, तो वो डिसलेक्सिया में मुब्तला है। यानी अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो वो डिसलेक्सिया की बीमारी से ग्रसित बच्चा है। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। सवाल है, कहानी सुनाने से, यानी कहानी सुनाने से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है बच्चे खुश होते हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चे दर्जा में तवज्जो के साथ खामोश बैठे रहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है बच्चे नज़्म व ज़ब्त में रहते हैं, यानी अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चों की क़ुव्वत तख़य्युल और क़ुव्वत इस्तिदलाल की नशो नुमा होती है। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। क्यों होगा? बच्चों की क़ुव्वत तख़य्युल, यानी जो बच्चों की कल्पना शक्ति है और उनकी जो तार्किक शक्ति है, क़ुव्वत इस्तिदलाल जो है, जिससे वो तर्क कर सकते हैं और अपनी बात के जो है सपोर्ट में कोई जो है दलील पेश कर सकते हैं, उसका जो है कहानी सुनाने से विकास होता है। क्योंकि बच्चे कल्पना करते हैं, सोचते हैं, और फिर कहानी सुनाने का उनको फ़ायदा मिलता है। छठा सवाल है, मुआलजाती तालीम की कामयाबी मुनहसिर है। मुआलजाती तालीम हम पढ़ा चुके हैं, यानी उपचारात्मक शिक्षण जो है, उपचारात्मक विधि जो है, ये आपने पढ़ा है। पिछली वीडियोज़ में आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और हमारे चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। चलिए, पहला ऑप्शन है निज़ामुल औक़ात पर, यानी समय सारणी पर। मुआलजाती तालीम की कामयाबी जो है ये डिपेंड करती है, यानी उपचारात्मक शिक्षण की जो है इसकी जो है सफलता ये डिपेंड करती है। पहला ऑप्शन है निज़ामुल औक़ात पर, यानी समय सारणी पर या टाइम टेबल कह लीजिए। दूसरा है लिसानी क़वायद की जानकारी पर, यानी भाषाई व्याकरण की जानकारी पर। तीसरा है परेशानियों की वजूहात की सही पहचान पर, यानी जो समस्याएं हैं उनके कारण की पहचान पर। और चौथा ऑप्शन है मुआलजाती तालीम की अशिया पर, यानी उपचारात्मक शिक्षण की जो सामग्री हैं उन पर, यानी क्या किया जाए कि मुआलजाती तालीम कामयाब हो, सफल हो। उपचारात्मक जो शिक्षण है वो कैसे कामयाब हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो आप मुंतखब कर सकते हैं। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। उपचारात्मक शिक्षण की जो है कामयाबी यानी सफलता जो है ये डिपेंड करती है परेशानियों की वजूहात की सही पहचान पर, यानी परेशानियों की जो वजह है, परेशानियों का, समस्याओं का जो कारण है, उसको जब सही पहचानेंगे तो फिर मुआलजाती तालीम आपका सफल होगा। आइए, कुछ बीमारियां हैं जिसको हमने ले रखा है, देखते हैं। डिस्ग्राफिया, आपने नाम सुना ही होगा। डिस्ग्राफिया जो है लिखने से मुताल्लिक़ परेशानी को कहा जाता है। यहाँ पेशानी हो गया है, चलिए हम यहाँ जो है परेशानी लिख देते हैं। परेशानी, ये पेशानी नहीं है, पेशानी तो कहते हैं आपके माथे को। तो डिस्ग्राफिया क्या है? ये लिखने से मुताल्लिक़ जो परेशानी होती है उसको कहा जाता है। और क्या होता है इसमें, बच्चा या तो सही से लिख नहीं पाता है या उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। आम तौर पर इसकी वजह क्या होती है? हथेली या उंगलियों में कमियां होती हैं, यानी जो उसकी हथेली है उसमें कोई ख़राबी हो जाए, या उसकी उंगलियों में कोई कमी हो, या जो है उसकी उंगलियां सही से काम न करती हों, ये सब वजह हो सकते हैं। उसके अलावा दिमागी तवाज़ुन यानी मानसिक जो है विकार के कारण भी
या मानसिक संतुलन अगर बिगड़ जाए तो उससे भी लिखने में दुश्वारी आ सकती है और डिस्ग्राफिया से बच्चा परेशान हो सकता है। अगला है अफेज़िया। अफेज़िया क्या है? अफेज़िया तो आपने सुना ही होगा। अफेज़िया होता है ज़बान और मवासलात से मुताल्लिक़ दुश्वारी को अफेज़िया कहते हैं। यानी अगर ज़बान से में कोई दुश्वारी है, भाषा से संबंधित दुश्वारी है, तो उसको अफेज़िया कहा जाएगी। इसमें बच्चे अपने ख़यालात और जज्बात का ज़बानी इज़हार नहीं कर पाते हैं। यानी जो आपकी ज़बान है, अपने अंदर की चीज़ों को जो छुपी हुई है, जो आपके अंदर यानी आप अपने अंदर की बातों को या आप अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं जब, तो ऐसी बीमारी से अगर आप परेशान हैं, आप ग्रसित हैं, तो उस बीमारी का नाम है अफेज़िया। एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या है? किसी दिमागी अमराज की वजह से पढ़ने में दिक्कत को एलेक्सिया कहा जाता है। यानी अगर मानसिक संतुलन आपका सही नहीं है, यानी दिमागी ख़राबी की वजह से, अमराज की वजह से, मानसिक बीमारी की वजह से, रोग के कारण कोई दिक्कत है पढ़ने में आपको, तो उसको एलेक्सिया से ताबीर करेंगे। अगला है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया क्या है? ये एक किस्म की जो है जिस्मानी मरज़ है, जिसमें आदमी लिखने, चलने, बोलने वगैरह से कासिर रहता है। यानी एप्रेक्सिया जो है ये किस्म का एक प्रकार का जो है ये शारीरिक जो है रोग है, और जो बच्चा या जो बालक इससे ग्रसित होता है, वो उसको लिखने में भी दिक्कत आती है, चलने में भी दिक्कत आती है, बोलने में भी दिक्कत आती है, तो उसको अब जो है अप्रेक्सिया हुआ है, वो अप्रेक्सिया से ग्रसित है। चलिए आखिर में सवाल है 7 नंबर, देख लीजिए। उर्दू की जमात में अक्सर गैर उर्दूदा बच्चे उर्दू सीखने में मुतफर्रिक़ मुश्किलात का सामना करते हैं। क्योंकि यानी उर्दू की क्लास है और जो बच्चे उर्दू नहीं जानते हैं, उर्दू सीखने में विभिन्न प्रकार की जो है समस्याओं का वो सामना करते हैं। क्यों करते हैं उसका कारण आपको बताना, उसकी वजह आपको तलाश करनी है। पहला ऑप्शन है वो मन लगाकर उर्दू नहीं सीखते। दूसरा ऑप्शन है उर्दू सीखने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। तीसरा ऑप्शन है उर्दू बहुत मुश्किल है। चौथा ऑप्शन है उर्दू और उनकी मादरी ज़बान की बनावट में फ़र्क होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल जो है 7 नंबर, इसका जवाब आपने मुंतखब कर लिया होगा। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। क्यों सही जवाब है? इसलिए कि वो मन लगाकर उर्दू नहीं सीखते। ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो सीख रहे हैं तो सीखेंगे ज़रूर। उर्दू सीखने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं, तो फिर उर्दू पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो ये भी सही नहीं होगा। उर्दू बहुत मुश्किल ज़बान, ये भी कथन, इससे भी कौल सही नहीं है। बल्कि क्या सही है कि अक्सर जो गैर उर्दूदा बच्चे होते हैं, उनकी जो मादरी ज़बान होती है और उर्दू की जो ज़बान है, उन दोनों में फ़र्क होता है। इसलिए उनको जो है विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। लेकिन एक दरख्वास्त है कि आपने अगर इस वीडियो को देखा, आपके सामने से गुज़रा है, तो आप अपने दूसरे उर्दू के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन तक पहुंचाना आप अपना अखलाक़ी फ़रीज़ा समझें। कौम की जो है कामयाबी में अपना कलीदी किरदार निभाएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।